ये धर्म परिवर्तन की बात आज मैं कहने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, जरा गौर से सुनिए। पहले तो ये कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन की जो क्रिया है, जो ये चल पड़ा है, ये बड़ी नासमझी की बात है। क्यों है ये नासमझी की बात? आप सुनिए। अब आप ये देखिए कि आप एक वायरस को मारना चाहते हैं, पर वो मरता नहीं, वो आपको अटैक करता ही जा रहा है। इस वायरस ने कितने रूप बदल दिए। ये छोटी सी चीज जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, ये बदलती जाती है। इसके अंदर इतना सेंस है, इतनी बुद्धि है। क्या है कि वो अपने को प्रोटेक्ट करना जानता है, वो आपके हमलों से प्रोटेक्ट करना जानता है। उसके डीएनए में इतनी समझ है, इतना ज्ञान है कि आप कैसा भी वैक्सीन बनाओ, वो आपकी पकड़ से बाहर होते जाता है। समझे ना आप? तो इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है सत, चित और आनंद। इसके अंदर एक सत है, द eternal truth inside it, which gives it the sense of resistance for life. उसको प्रतिकार की शक्ति, अपने को बनाए रखने की जो शक्ति है, वह उसके सत तत्व से मिलती है। और उसमें चित्त है, चित्त, कॉन्शियस है। वो कॉन्शियस क्या होता है? वो जानता है कि वो कौन है, वो कौन है, उसकी प्रकृति क्या है, वो जानता है। एंड इट बिहेव्स द वे इट इज मेड। एंड आखिर में एक आनंद होता है उसका। वह आनंद है कि जिसके वजह से वह अपने आप को संजोए रखता है, जीवित रखता है। तो ये जो सत चित आनंद है, वो आप में भी है। आप चाहते हैं कि हम वायरस से न मरे। हाँ, अच्छी बात है। तो आप में उस तरह का सत चित आनंद होना चाहिए जिससे आप उस वायरस के अटैक का प्रतिकार कर सको, है कि नहीं? अब ये कहां से आएंगे आपके जीवन में? आप समझते हैं कि मेरा धर्म मैं बदलूंगा तो मुझे सत चित आनंद मिल जाएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी ऑन द राइट पाथ एंड माई conscience will become pure if I change my dharma. That is not it. वो सामान्य सा वायरस अपना धर्म नहीं बदलता, ये तो आपने देखा। Therefore you have not understood where you are and what is your dharma. You start hating others. When you start hating yourself, when you start hating your clan, when you start hating a group of people following some dharma, then you change your dharma. When you are in their dharma. That means you think dharma is what they do. Dharma is that which others do. No, Baba, dharma is what you do, what you cultivate, the sat, chit and anand in yourself. That is your dharma. That protects you from the physical attack on your body, and it also protects you from all the adversities in your life. You do not have to find God in various forms, but God himself has made this entire Srishti, the universe which you can possibly see and which you cannot see. All that is made by him with his energy. But we do not wish to understand him, that when the God can create, then he can create himself. He can give a form to himself. Why not? Yes, that is possible. The form in which you wish to see him, you wish to like him, you wish to get the happiness from him, in the qualities in which you want to see him. The God which creates and which has created all the gunas, the elements and its characteristics, can come before you in the gunas or characteristic or in the form of gunas, like beautiful smell, like beautiful scenery, beautiful flower,
beautiful music, beautiful touch of the breeze, and in the beautiful taste in the nature, not the man-made taste, not the man-made manners of enjoying life. Because that which is tainted with greed and lust, that is the man's darker side, is not what is Sat. It is not the truth. It is not pure. Yes, it doesn't add to your shine of conscience. Therefore, those have to be left from the calculations of the Sat Chit Ananda. Yes, it can come in so many forms, and in all the forms at once. But we do not see the form of God in everything, because God is Himself, the Creator and the creation. That is what the Sanatana Dharma teaches you. If you see that there is something mined out of the earth, the gold or the silver, and many elements, all these many elements have been defined to have certain valencies. That is, they have a nuclei and protons and neutrons and electrons in them, which are constantly active. They change form, right? How does the gold become gold under the earth? You have not yet understood that. How does silver become silver under the earth? You have not understood that. And they have all the specific characteristics, and therefore the elements are so distinct, and it's very difficult to find a new one. The basic elements are not possible to create. Who knows that? Who knows that art of creation? Who knows it? And you have certainly not known it. Otherwise you would have made the gold like gold, real gold. The diamonds like diamonds, the real diamonds that can cut the other diamonds, not these artificial ones. But you have not yet done that. I don't say in the far future we may not be able to do that, but yet we have not found out how the liver functions, how the pancreas function, how the body gets ill, how the kidney functions, the minute details of your cells, how they go mad. Have you found them out? Not yet. There are great things. एक वायरस के अंदर कितना डीएनए का चेंजेस होता है वो गिनते गिनते कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, आज तक उन्हें पता नहीं चला। अरे भाई साहब, एक बीज जो जमीन में बोया जाता है उसके अंदर जो संस्कार होते हैं, द इनहेरेंट क्वालिटीज इन दैट सीड, हाउ एंड वेयर दे केम फ्रॉम, how they exist inside it, we do not know yet. Yes, we make hybrid beej, but we do not know how that information is stored in them. That is Sat Chit Ananda. बीज को जला दो तो सब कुछ खत्म। जब मृत्यु हो जाती है तब शरीर खत्म हो जाता है, और जो हमारे अंदर में संस्कार है, जो हमारी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमने जन्मों जन्मों से बनाए रखा है, उसे जलाने की रीत वेदांत सिखाता है। ऊपर का जलने से अंदर का नहीं जलता, बीज के माफिक। वो बीज जो हमारे में है वह नहीं जलता, कभी नहीं जलता, और वह जलाने के लिए ही तो सारे जीवन मरण का चक्र है। पर शरीर में रहा हुआ जो आत्मा है, जो जीव है, वह निकल कर बाहर निकल जाता है, और जब वो निकल जाता है तब वह अपने साथ ये सारे संस्कार लेकर निकलता है। पर इसे मानने तक की जो समझ है, जो वेदांत में दिया हुआ है, इसे तो हम पढ़ते नहीं। हमारा एक जो रिश्तेदार है कुछ दिनों पहले बड़ा नाराज हो गया अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से, तो वह बन गया मुसलमान। बड़ा गुजराती था, मुसलमान बन गया। जब उसे पूछा गया कि क्यों भाई, क्यों हो गए मुसलमान? नहीं भाई, मजा आ गई, मुसलमान बन गया, मुझे अच्छा लगता है। हाँ भाई, अच्छा लगता है।
अच्छा क्या लगता है साहब, क्या आपने अपनी माँ को बदला? आप उसी माँ की सेवा करते हो ना, आपने उसे बदला नहीं। परिस्थितियां जैसी भी आती है, हम अपनों को नहीं बदल देते, अपने परिवार को नहीं बदल देते, है कि नहीं? हम अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह से निभाते हैं जैसे निभाते आए हैं। तो धर्म क्या होता है यह तो समझते नहीं और चले जाते हैं नाराज होकर। नाराज होकर धर्म बदलना तो सबसे बुरी बात है। समझदारी से धर्म बदलना, नहीं कि इसको बुरा कहकर उसमें चले गए आप। कहीं भी जाओ, अगर भगवान अलग है तो फिर क्या है? अगर अलग है तो धर्म बदलो आप। और अगर उस धर्म में कुछ नया बताया है, कुछ अच्छा बताया है, तो उसको समझो और उसमें जाओ। छूट है आपको। भाई आप बड़े धार्मिक हैं तो धार्मिक बनो, धर्म बदलो आप, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर किसी के लिए द्वेष रख के, मन में इल विल रखकर धर्म को बदल देना, किसी लालच में आकर कि भाई हमको यहाँ कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? दुनिया की चीजें मिल जाएगी जो मरने के बाद आपके साथ आने वाली नहीं है, वो मिल जाएगी। आज का दिन मेरा सुधर जाएगा, तो चलो धर्म ही बदल देते हैं। तो ये धर्म बदलने वालों को तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। समझे ना? देखो, भगवान ने इंसान को इतनी सारी समझ दी है कि नहीं? आप मानते हो ना? भाई एक मच्छर अपना धर्म नहीं बदलता, एक बैक्टीरिया अपना धर्म नहीं बदलता, एक जो है आपका शेर, एक कुत्ता अपना धर्म नहीं बदलता। भाई वो घास नहीं खाता। कोई एक एलिमेंट यूनिवर्स में अपना धर्म नहीं बदलता। हाँ, यूरेनियम ही रहता है, गोल्ड ही रहता है। एक सांप भी अपना धर्म नहीं बदलता। पर इंसान धर्म को समझता कहाँ है? समझता नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैं धर्म बदलूंगा, मैं दूसरों को काटूंगा, दूसरों को मारूंगा। मेरा धर्म नहीं मानते, मुझे नहीं मानते, तो मैं उनको काटूंगा। भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? अपनी मानवता को खो बैठे हो। मानवता ही आपका धर्म है, और उस मानवता के जो मान है, मापदंड है, मेजर्स है, वैल्यूज है, उसे तो आप मानते नहीं। बताइए साहब, अगर कोई धर्म कहता है कि आप मार सकते हो ऐसे लोगों को, तो भाई क्या है वह? हाँ, अगर आप लोगों ने पुराण पढ़े होते, महाभारत पढ़ा होता, तो देखिए वहां पहल धर्म को बचाने की कोशिश की गई थी, हिंसा को ना करने की कोशिश की गई थी। एट एनी कॉस्ट वी डू नॉट वांट टू क्रिएट अ mayhem, the vast killings on the fields of battle. Therefore, Lord Krishna and all the Pandavas decided that they should go for a compromise. और कॉम्प्रोमाइज भी किससे? ऐसे अधर्मियों के साथ। कैसे अधर्मियों के साथ? जो दूसरों का छीन लेना ही अपना धर्म समझते थे। ऐसे लोग जो किसी की नारी की इज्जत लूटने पर उतारू हो जाते थे, जो शराब पीते थे और अपने आप को भूल जाते थे, ऐसे लोगों के साथ भी एक कॉम्प्रोमाइज का धर्म होता था। उसके लिए गए, कहा कि नहीं भाई, हमको आपने जो ले लिया है, छीन लिया है, इतना नहीं चाहिए, सिर्फ एक 5 गांव दे दो। तब उन्होंने कहा कि एक सुई भर के ऊपर जितना जमीन का टुकड़ा आ सकता है, उतना भी आपको नहीं देंगे। तब यह धर्म युद्ध हुआ, तब हुआ, नहीं तो नहीं होता। सहन करने की जब शक्ति चली जाती है इंसानों में, तब अधर्म आता है जीवन में, धर्म परिवर्तन आता है जीवन में। आज प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ भी हमने अपना धर्म नहीं निभाया। ये किस लिए?
कि हमारी जो ग्रीड है फॉर अ कन्वीनियंट हैप्पी लाइफ, इसकी वजह से हमने प्रकृति तक को नहीं छोड़ा। यह कितना बड़ा अधर्म है, मानते हो? तो धर्म क्या होता है थोड़ा समझिए। एक जगह से दूसरी जगह इबादत करने चले जाना वह धर्म नहीं है भाई। इबादत जरूर करो, पर इबादत के लिए जो चाहिए आपके दिल में वो है या नहीं। दिल यानी हार्ट नहीं, फिजिकल हार्ट नहीं। वह दिल आपका कितना बड़ा है आपको पता है? बहुत बड़ा, सागर जैसा बड़ा है। वह दिल कितना खुश होता है पता है आपको? बहुत खुश होता है, सारी आकाश को भर देता है, उतना खुश होता है। जो प्रेम होता है वही आनंद होता है। उस दिल में इतना प्रेम समा सकता है कि सारे ब्रह्मांड को उसमें समा लेता है। ऐसा है आपका दिल। वो हार्ट वाला दिल नहीं साहब, कॉन्शियस वाला दिल जिसमें सत और चित्त दोनों रहते हैं, ऐसी वाला आनंद भी रहता है। यह आपका हृदय है। इस हृदय के आकाश को आप नाप नहीं सकते, इस हृदय की गहराई को आप नाप नहीं सकते साहब। यह कितना कुछ अपने में रख सकता है। दिमाग बड़ा शातिर होता है। यह दिमाग का ही चाल होता है साहब, जो हम लोगों को भगवान ने दिया है अपनी तरह से इस्तेमाल करने के लिए, जो कि मच्छर को नहीं है, नहीं तो वो मच्छरों को भी काटता, मगर वो अपना धर्म बनाए रखता है क्योंकि उसके दिमाग में ट्यूनिंग नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, बदलता नहीं दिमाग। तो हृदय को, अपने हार्ट को देखो, कॉन्शियस को देखो, वहां दिमाग को मत देखो। दिमाग ने जो बर्बादी की है धर्म के नाम पर, इतनी इंसानियत की बर्बादी किसी और चीज ने नहीं की है। सही क्या गलत क्या इतनी समझदारी हो जाए तो आपकी बुद्धि का काम है, वह डिस्क्रिशन का काम है। जो दिमाग यानी कि मन नहीं कर सकता, बुद्धि कर सकती है। तो आपको मन में होता है आइसक्रीम खा ले, भाई साहब तबीयत खराब होगी तो आइसक्रीम नहीं खाते हैं आप। भाई साहब हम घूमने फिरने चले जाएं, मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये समझदारी नहीं है कि नहीं? बुद्धि नहीं है आप में बचने की, है कि नहीं? तो इस तरह से जो बुद्धि दी है हमें भगवान ने, यही तो धर्म है। इसे सही से इस्तेमाल करना आपका धर्म है कि नहीं? हाँ, समझे? आप देखिए, धर्म के नाम पर एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म के लोगों से लड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आप मुझे ये कहिए साहब कि इस्लामी देशों में जैसे सीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, यमन है, सऊदी अरब और यमन का झगड़ा होता है, इराक है, ईरान और अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहां पर लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं साहब? क्योंकि समझदारी नहीं है, धर्म की समझदारी नहीं है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ धर्म इन द सेंस इट इज यूनिवर्सल, दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड। भाई भूतों को मानोगे तो काट देंगे आपको। अरे भाई भगवान के दो हाथ नहीं होते, दो पैर नहीं होते। जब आप निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, और हमारे वेदों से उठाकर आप समझाते हैं हमको, तो आपसे एक बात और कर देते हैं। जब आप निर्गुण बोलते हैं तब आप गुण को समझते हैं, तब ही आप निर्गुण कहते हैं। आप गुणों की दुनिया में रहते हैं साहब, जिसने भगवान ने बनाई, वो कैसे निर्गुण हो सकता है? कैसे निराकार हो सकता है? आपने सारे आकार ही आकार देखे, वो निराकार कैसे हो सकता है? आपके जीवन में जब से पैदा हुए आपने माँ का आकार देखा, आपने जो खिलौनों का आकार देखा, आपने घर, आपने बगीचे देखे, आपने फूल पत्ते देखे, सारे आकार ही तो है। और गुण सभी में है। आपको सुगंध मिलती है फूलों से, इतना स्पर्श होता है आपको ठंडी महकती हवाओं का, वो भी गुण है कि नहीं? हवाओं का गुण है कि नहीं? आप ये सुंदर कपड़े पहनते हैं, ये सुंदरता का गुण कपड़ों में है कि नहीं? आप जेर जवरात के पीछे पागल हो जाते हैं, गुणों के पीछे पागल हो जाते होते हैं कि नहीं? वो किसने बनाया साहब?
कहां से आया है कि नहीं? फिजिकल थिंग्स दैट गिव यू द हैप्पीनेस, दे आर ऑल हैविंग गुण। तो परमात्मा में गुण नहीं है, आप यह कहना चाहते हैं। वो निराकार है। इतने सारे आकारों के बीच में आप मजे लेते हो और कहते हो कि भगवान निराकार है। अब निराकार को समझेंगे कैसे आप? कभी समझने की कोशिश की आपने? क्या निराकार से आपका दिल मिला, दिमाग मिला? नहीं, आपने वो कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपने वेदों को नहीं जाना, वेदांत को नहीं जाना। तब आपने वो कोशिश कैसे होती है यह भी नहीं समझा। तो फिर क्या? मेडिटेशन करो। क्या करो साहब? अपनी सांसों को आते जाते देखो। यह ध्यान नहीं है, यह ध्यान नहीं है। ध्यान उस परमात्मा तत्व का, निराकार का हो सकता है, उस साकार का भी ध्यान हो सकता है। मोहब्बत करते हो एक फोटो हाथ में लेकर अपनी फियांसी का, तो वो तो कहाँ है उसका आकार? वहां फोटो में वो आकार आप छू नहीं सकते, आप महसूस नहीं कर सकते, उसकी बातें सुन नहीं सकते। फिर भी दिल में उसकी तस्वीर रख कर आप अपनी माशूका से मोहब्बत करते हैं। कैसे करते हैं साहब? वो तो निराकार है उस वक्त, उसका आकार भी तुम्हारे सामने नहीं है, फिर भी आप मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह से भगवान से भी मोहब्बत हो सकती है, उनकी तस्वीर से मोहब्बत हो सकती है, उनके बुत से भी मोहब्बत हो सकती है साहब। जो कुछ भी सुंदर है, अगर आप सुंदरता नहीं देखोगे तो मोहब्बत कैसे करोगे साहब? आप किसी के जीवन में सुंदरता नहीं देखते, किसी पराये आदमी में सुंदरता नहीं देखते, आप जानवरों में सुंदरता नहीं देखते, तो फिर आप जानवरों को मारकर खा जाते हैं साहब। वो मुर्गी हाथ में रखते हैं, उसका गला काटते हैं। सुंदरता नहीं देखते आप। कौन सा धर्म है आपके अंदर? कहाँ है? शराब पीते हो, अपने आप को भूल जाते हो और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हो, गाली गलौज करते हो और शराब को सुंदर मानते हो। क्या है साहब? इतना बददिमाग आपका क्यों हो गया? क्योंकि आपने धर्म को नहीं समझा। धर्म भी कहता है शराब मत पियो, पराई औरत पे नजर मत डालो, जानवरों की हिंसा मत करो। मानते ही नहीं ना आप, फिर धर्म क्यों परिवर्तन करते हो? कौन से धर्म से कौन से धर्म में चले जाते हो? तुमको खुशी होती है इन मर्यादाओं से बाहर निकलने की। आप मजे लेते हो जब आपकी दुनिया से, आपके जीवन से वैल्यूज चली जाए, एथिक्स चला जाए, हाँ, अपने परिवार के प्रति मान चला जाए, अपनों के प्रति प्रेम चला जाए, नफरत आ जाए, इसमें आपको मजे आती है। तो फिर आपका धर्म कौन सा है साहब? कौन सा धर्म है? आप नास्तिक होते ना तो भी अच्छे होते साहब, आप नास्तिक होते ना तो भी अच्छे होते। मगर ये धर्म की आड़ में आप जो कर रहे हैं वो नास्तिक से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं आप। यू आर लिविंग अ वेरी इमोरल लाइफ देन इवन अ एथिस्ट। यू आर लिविंग अ वेरी distrustful, disrespectful life than an atheist. Then you will say that I follow a certain religion. Then you say, I want to change my religion. Where you will find religion? I do not understand. You will not find religion anywhere. It is not in you. You have forgotten your inherent character. Therefore, आप भटकते हो। रिलीजन के नाम पे तो बहुत ज्यादा ही भटक जाते हो। आप तो सत्य को देख नहीं सकते, आप आनंद को नहीं देख सकते, आप दूसरों में रहे हुए कॉन्शियंस को नहीं देख सकते। तो फिर क्या हो जाता है आपका? क्या हो जाता है आपका? आप वह सब कुछ करने लगते हो जो एक अच्छे आदमी को नहीं करना चाहिए। धर्म परिवर्तन करते हो, किस लिए करते हो? क्या समझ कर करते हो? यही तो नासमझी की बात है, यही तो नासमझी की बात है भैया। एक इंसान के फ्रीडम को आप रिस्ट्रिक्ट करते हो कि नहीं? धर्म के नाम पर अपने ही घर में किसी को कहते हो कि यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे पहनो मत, वैसे पहनो मत। ठीक है साहब, तो इसी को धर्म मान लिया आपने। यही तो है मूर्खता कि हम धर्म को नहीं मानते, नहीं समझते, फिर भी धर्म परिवर्तन की ओर दौड़ लगाते हैं, चले जाते हैं। क्यों भैया? यही पाने के लिए आप जाते हैं। मुर्गा मटन खा सको तो धर्म परिवर्तन कर डालो,
शराब पी सको तो धर्म परिवर्तन कर डालो। भाई साहब वाइन पियो, धर्म परिवर्तन करो। हाँ भाई अलाउड है, यहां पर अलाउड नहीं है, वहां पर अलाउड है, चले जाएंगे उस बार। ये कुर्सी छोड़कर उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे, है कि नहीं, ये हॉल छोड़कर उस हॉल में चले जाएंगे। पर जीवन में जो नियम नीति का पालन करना होता है, जब वह स्ट्रिक्ट होते जाते हैं तब आप धर्म परिवर्तन करते हैं। Therefore it restricts your greed. What? These values and ethics. Therefore you want to change your dharma. Is it? Or you have still not understood what is meaning of dharma? तो ना समझी का जो है धर्म परिवर्तन का सिलसिला, यही समझाने के लिए मैंने यह सब आपको आज बताया कि धर्म बदलने का सिलसिला ना समझी का है। अगर समझी का होता है, समझदारी का होता है तो बहुत अच्छी बात है, समझे ना। तो चलो भाई अब बस करते हैं। जय सिया राम।